Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. I have been practicing law in the Supreme Court for the last several years. As a lawyer, हमें सिखाया जाता है कि एक दिन हार होती है, एक दिन जीत होती है. You might as well get used to it. But somehow, it is practically impossible to get used to it. इसकी आदत ही नहीं पड़ती. It is always a surprise or shock or something in the middle that when you see certain judgments and certain matters which go in a particular direction, when the judges announce their judgments, it is always a surprise or always a shock. Amongst those shock judgments, I guess today's judgment, in which the Honorable Supreme Court decided that the electoral bond scheme is unconstitutional, ranks amongst the top 5 at least, right? तो आज का जो ये अनाउंस जजमेंट आया is something that, you know, the metaphorical shook the ground below our feet. ये क्या है यार? How did this happen? We were expecting certain things, certain repercussions of electoral bond schemes, लेकिन completely unconstitutional, that too by a unanimous judgment. क्या बात है, unbelievable, and that means it deserves a detailed analysis. ये जजमेंट को हम लोग इस वीडियो में एक एक अल्फाज, एक एक वर्ड, एक एक थॉट प्रोसेस को एनालाइज करेंगे. इट विल डू यू अ वर्ल्ड ऑफ गुड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ये वीडियो तुमको इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का ए टू जी, अब तो ए टू जी बोलना पड़ेगा बिकॉज ये खत्म हो गया. सो वी विल हैव टू फॉलो दिस टिल द लास्ट जी कि क्या हुआ, कहां से शुरुआत हुआ, कहां इसका आगाज था, कहां इसका अंजाम हुआ है. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस. दिस इज गोइंग टू बी अ टेरिफिक वीडियो. डोंट मिस अ सिंगल सेकेंड. सो अनाउंसमेंट ये है, सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल. आज सुबह से ये करंट अफेयर्स चल रहा है. ये एक न्यूज इतनी धमाकेदार न्यूज हुई है. सो आई होप यू गोइंग टू हैव अ ह्यूज टाइम watching this part. For those amongst you who do not know me, I'm Dr. Siddharth Arora. I have been teaching polity, governance, international relations, and PSR optional on Unacademy. I'm a practicing advocate in the Supreme Court of India. And on Unacademy platform itself, I have been watched for more than 30 crore plus live minutes. Use the code SIDLIVE, SIDLIVE. This is my referral code. Every time you want to take Unacademy subscriptions, you will get great opportunities of saving money and various other advantages that Unacademy from time to time brings for you. So let us understand ये पूरा का पूरा एलिमेंट ये हुआ क्या है. So I'll read out some parts. Supreme Court 5-judge constitutional bench has struck down the electoral bond scheme that allows anonymous donations to political parties. So हर वर्ड के पीछे एक दास्तान है. हर वर्ड के पीछे there are certain elements that all of you must appreciate. So first of all, electoral bond scheme was not always in the picture. 2017, ex-finance minister of ours, Shri Arun Jaitley Sahab, he had introduced this, and then by 2018, this had become activated. But electoral bond scheme करने की जरूरत ही क्या थी? What is first of all electoral bond scheme की जरूरत? Where does electoral bond scheme fits into the definition of a scheme for that matter? An introduction. क्यों ऐसा करना पड़ा? So before that you have to understand कि political parties जो होती है, every political party जो होती है, when it is registered before the electoral commission or the election commission of India under section 29A of Representation of Peoples Act 1951, तो उस only वो इस electoral bond scheme से के लिए qualify करती है, as in you can donate only to these political parties. So this is one of the pictures of electoral bond scheme. If you are able to see this and you're able to zoom in on the screen, this is issued by the select branches of State Bank of India only. होता क्या है कि for the longest time political parties को donation की जरूरत पड़ती है. Political parties को industries तो होती नहीं है, उनकी कोई factories चल नहीं रही, दुकानें चल नहीं रही.
So they are dependent upon donation and donation and donation and donation only. So there is nothing else that you can think about. Otherwise ये कमाएंगे कहां से? Otherwise ये इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा सिस्टम चलाएंगे कैसे? So political parties में आप, मैं, हम जैसे बहुत सारे लोग, even in corporations etc. would donate. When they donate, उसी पैसे से ये political parties would function. Simple. So these political parties would start getting funds from all amongst us. अब इसको फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम किसी भी तरीके से दिया जा सकता था, इन द वे कि आप इसको कैश डोनेशन भी कर सकते थे. आपने कैश डोनेशन किया. कैश का सबसे ज्यादा मजा होता है, कैश पे नाम नहीं लिखा होता, मतलब हमारा नाम नहीं लिखा होगा, देने वाले का नाम और लेने वाले का नाम कैश पे नहीं लिखा होता. तो आपने कैश दिया, एनोनिमस हो गया. दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि इट कुड, दैट मनी जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहा है, कुड हैव कम फ्रॉम शेडी सोर्सेस. शेडी सोर्सेस से पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिल रहा है, तो एक तरह से आपके लिए और बड़ी मुसीबत हो सकती है. क्यों? हो सकता है कुछ गलत लोग आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे फंड कर रहे हो जो देश के दुश्मन हो, एंड इन दैट सर्कमस्टांसेस वो देश के दुश्मन अगर सत्ता में आ गए, पावर में आ गए, तो देश को बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे. हेंस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था कि जो भी पैसा जाएगा वो बैंक के थ्रू जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जाएगा, माइनस एन एक्सेप्शनल कंडीशन कि 2000 रुपए तक का आप जो डोनेशन करते हो वो आप कैश में दे सकते हो. बाकी सब आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ दे दो, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन यू माइट बी एंजॉय, लाइक यू हैव टू गो थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड दैट इज एन इलेक्टोरल बॉन्ड. इलेक्टोरल बॉन्ड वाज लाइक अ प्रॉमिसरी नोट. दैट मीन्स the one you are going to donate, he has the power to encash it in a particular bank account. निकालो वो पैसे and utilize करो. Electoral bond scheme broadly, largely was this. But there are many slips between the cup and the lip. So we have to ensure, first of all, to understand what did the Supreme Court say in this judgment. So इस judgment में challenge क्या हुआ था? The electoral bond scheme को challenge किया गया था that this has opened the doors to unlimited, unchecked funding of political parties. 5-judge Supreme Court bench बैठे, headed by the Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, और इनों के सामने there were challenges. So Communist Party of India, Marxist, Common Cause, ADR, इन सब लोगों ने challenge किया, and they said कि this must be struck down because देखा जाए तो ये political parties को unlimited, unchecked political funding करवा सकते हैं विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी. भाई ये क्या बात हुई? बात ये हुई है कि आप जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे केवाईसी ले लेता है, नो योर कस्टमर. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मालूम है कि देने वाला कौन है, मेरा नाम, मेरा आधार कार्ड, मेरा सब कुछ उसको पता है. बट एट द सेम टाइम ये जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि देने वाला कौन है. Apparently, if you look at this as an entirety, it is anonymous. किसी को नहीं पता that who is donating. और अगर आप इन बॉन्ड्स को काउंट करोगे, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख करोड़ तक का जो बॉन्ड्स की वेटेज है, आप उसमें कैलकुलेट करके जितना मर्जी वेटेज दे दो, जो मर्जी अमाउंट दे दो. सो फॉर डूइंग दिस द गवर्नमेंट डिसाइडेड, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च हुआ, so there were many changes. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में चेंज हुआ, इनकम टैक्स एक्ट में चेंज हुआ, अरे कंपनीज एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ. देयर वर एज मेनी एज 5 अमेंडमेंट्स डन टू एंश्योर कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सेल्स थ्रू. क्या क्या हुआ इसमें? इंपॉर्टेंट चीजें कुछ ऐसी भी हो गई, राइट, कि कोई भी कंपनी डोनेट कर सकती है, इवन अ लॉस मेकिंग कंपनी डोनेट कर सकती है. शेयर होल्डर्स को कोई पता ही नहीं, पैसे डोनेट हो रहे हैं, मुझे यही नहीं पता एज अ शेयर होल्डर कि वो कंपनी, मेरी कंपनी क्या डोनेट कर रही है, कितना डोनेट कर रही है, किसको डोनेट कर रही है. इन अदर वर्ड्स, किसी को नहीं पता कि हु इज डोनेटिंग एंड बाय व्हाट अमाउंट. दैट मीन्स दिस इज अनलिमिटेड एंड अनचेक्ड. तो एक सवाल यह पैदा होता है कि एनोनिमिटी पे व्हाई इज द गवर्नमेंट प्रेसिंग सो मच? तो यू हैव टू गो टू द गवर्नमेंट ऑल्सो. हमेशा लॉ में दोनों बात सुना करो. It is not good to hear only one side of the story. You must hear both the sides of the story. Principles of natural justice है. In law, you must hear both the sides of the story. Audi alteram partem बोलते हैं. You have to hear both the sides of the story. वरना क्या हो जाता है, एक साइड की स्टोरी बड़ी अच्छी लगने लगती है, दूसरी साइड की स्टोरी विलेनस लगने लगती है, which I don't think. अकबर अलाहाबादी साहब बोलते थे, तेरा ही शहर, तू ही मुद्दई,
तेरा ही मुंसिफ, हमें यकीन था कि हमारा ही कसूर निकलेगा। ओके, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था कि हमारा ही कसूर निकलेगा। So let us ask the government of India why the government of India wanted anonymity. So anonymity के basis पे government of India is placing reliance on a 2019 judgment of the Honorable Supreme Court in which Supreme Court by itself said it is a famous Justice K.S. Puttaswamy judgment in which Supreme Court said a right to privacy is a fundamental right. भाई मैं किसको डोनेट कर रहा हूं, मेरी मर्जी, हाँ मेरी मर्जी, who are you to ask, right to privacy है। So right to privacy is a fundamental right. Point number one. Point number two, government says anonymity is very important. Why? Because anonymity अगर नहीं होगी ना तो there could be a backlash. तुम खुद सोच के देखो, तुम मेरे ऑपोजिट में खड़े हो इन एन इलेक्टोरल बैटल और मेरे को जो सपोर्ट कर रहा है, जो मुझे पैसे दे रहा है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा दुश्मन होने वाला है। सिंपल सी बात है, बिकॉज उसकी डोनेशन पर मेरे पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो रही है। यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू दैट डोनर माइट फेस बैकलैश फॉर बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स, सो टू से। अगर खासकर मैं हार गया, मैं सत्ता में हो गया तो ठीक है। सो देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम स्टोरी, सो द आर्ग्यूमेंट कट्स बोथ वेज, राइट, इन द सेंस कि अगर आप एनोनिमिटी करते हो तो ये बोलते हैं, द पिटिशनर्स बोलते हैं अनलिमिटेड अनचेक्ड एनोनिमस फंडिंग है, हमें पता ही नहीं है। ओके, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, देयर इज नो वेरीफाइबिलिटी। गवर्नमेंट बोलता है ऐसा थोड़ा ना कि हम छुपा रहे, हम तो बोल रहे हैं एनोनिमिटी है, बट एनोनिमिटी का फायदा है, हम चाहते हो बेनामी रहे, किसी को पता ना चले, अदरवाइज पॉलिटिकल बैकलैश आएगा और राइट टू प्राइवेसी का, फंडामेंटल राइट का हनन होगा। क्या सोच रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को नहीं लग रहा दोनों साइड की तरफ से आर्ग्यूमेंट मैं कर रहा हूं? तो जरा अपने अपने विचार तो डालो कमेंट्स में। ओके, नाउ ऑब्वियसली तुम्हें पता ही चल गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात मान ली है, लेकिन फिर भी अपने विचार डालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ थिंक अबाउट इट कि ये कभी भी लॉ की जब डिसीजंस होती है तो इतनी ब्रॉड नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, एक हीरो एक विलेन, इतना नहीं होता। इट्स यूजुअली इन द शेड्स ऑफ ग्रे, इट्स समवेयर इन द स्पेक्ट्रम। सो इन द स्पेक्ट्रम दीज टू वर डिसीजंस। So this was the case. The 5-judge constitutional bench was decided. This case was a writ petition, Association for Democratic Reforms versus Union of India. और आज 15 February, if you can see the date, I'm sure you cannot see the date. It's very close. 15 February को ये judgment आई and tectonic waves हिल गए. Okay, and nobody was expecting. I am sure those who were petitioners were also not expecting it. इतनी जबरदस्त judgment आएगी, and that too it was a unanimous judgment. All the five judges agreed. There was no dissenting judgment, and that is why this judgment came, and this judgment is something that we discussed. So सबसे पहले देखते हैं कि what is the Supreme Court saying? The Supreme Court held that amendment to section 29(1)(c) or Representation of People's Act, Income Tax Act amendment declared जितने भी related amendments थे, which was the only possibility जिसके through this electoral bond scheme would have sailed or would have carried on, they are all held as unconstitutional, which automatically says electoral bond scheme is struck down as unconstitutional. It is over. That's over. There is no ifs and buts about it. There is no in-betweens. There are no elements saved. Nothing. Electoral bond scheme is history. It has been relegated to the record room. The case is closed. इट ऑल्सो कंटिन्यूज कि जो तुम लोगों ने पैसा दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो भी केवाईसी, प्लीज रिमेंबर केवाईसी, नो योर कस्टमर, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब मैंने पैसे डोनेट किए थे, अच्छा अब तुम बता रहे हो, हाँ मैंने किए थे, अब क्या है, अब तो राइट टू प्राइवेसी की चिंता ही नहीं है। ओके, बोल दिया जी मैंने किए थे। ओके, तुम भी अपना नाम बता दोगे तुमने किए थे, बिकॉज एनी हाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको बहुत जल्दी अपने जितने भी उनके पास डिटेल्स थे वो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी से जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से, वो 6 मार्च को वो सबके सब बता ही देंगे। माइट एज वेल तुम ही बता दो, लिख दो कमेंट सेक्शन में, क्या पता तुमने डोनेट किया है तो लिख दो तुमने कितना डोनेट किया है और कितना पैसा था, तुम्हारा नाम पता सब कुछ लिख दो, सब कुछ, बिकॉज आइदर वेज इट्स नॉट गोइंग टू रिमेन हिडन. The State Bank of India will have to reveal it, and the State Bank of India will have to reveal that to the Election Commission of India by 6th of March, which is not too far off. Alongside that, there is a third element, and this is a shocking element. The shocking element is कि Election Commission of India भी वो सारी publication जो State Bank of India उसको देगा, वो 13 मार्च को अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे. तो अगर तुमने डोनेट किया हुआ है तो तुम्हें अपनी फोटो दिख जाएगी, फोटो नहीं दिखेगी, नाम तो पक्का ही दिख जाएगा on the Election Commission of India website. So, my God, Supreme Court has come down heavy.
All right. So as I said, it you just never get used to it. So Honorable Supreme Court is Supreme Court for a reason. एंड उन्होंने बोला एवरीथिंग वी आर टर्निंग बैक टाइम. ओके, जो कुछ हो गया. तब तुम लोगों ने बोला था केवाईसी रिफॉर्म्स, केवाईसी ले लेंगे लेकिन और कुछ नहीं देंगे हम तुमको, बताएंगे नहीं, दुनिया को नहीं पता चलेगा. लो जी, अब तुम्हारा नाम वेबसाइट पे आने वाला है. वेरी गुड. पॉलिटिकल पार्टीज देयर आफ्टर रिफंड ऑल्सो. माय गॉड, वो पैसा रिफंड भी आने वाला है. वेरी गुड. सो व्हाट फॉर दैट द पॉलिटिकल पार्टीज will have to refund that money also which has been issued. This is big, my friends. This is as big as it gets. This is huge. This judgment will go down the annals of history for a long time to come because people will remember when the Supreme Court acts, it acts in capital letters. Right to information under Article 19(1) includes the right to know about political funding. सुप्रीम कोर्ट ने जिस ग्राउंड पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, ट्रस्ट मी, इट टेक्स क्वाइट अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉलो दिस. तो लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है. सुप्रीम कोर्ट सेज anonymous electoral bond scheme is violative of Article 19 subclause 1 subclause A. बहुत कम लोग ऐसी बातें सोचते हैं और बहुत कम लोगों को यह बात समझ में आती है कि 19 subclause 1 subclause A है क्या. 19 subclause 1 subclause A is freedom of speech and expression. मैं जब आर्टिकल 19 subclause 1 subclause A पढ़ाता हूं तो मैं सब लोगों को बोलता हूं कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ये बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? एवरी सिटीजन कैन एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स बाय वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी, एनी अदर मीन्स. अपने तुम्हें जो विचार है, जो शब्द है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, सब कुछ बोल सकते हो. ऑफकोर्स देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन. ऑफकोर्स आप सब कुछ नहीं बोल सकते, इन द सेंस फंडामेंटल राइट्स कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स को अगर हम थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन हटा दें, जैसे सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को आप हर्ट नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस को आप हर्ट नहीं कर सकते, डिफेमेशन नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, इंडिया का फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज नहीं कर सकते, और डिसेंसी ऑन मोरालिटी और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस नहीं कर सकते. दीज आर द ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, लेट अलोन दैट. लेकिन मेरा ख्याल यहां पर यह है कि तुम एक्सप्रेस करोगे क्या. राइट. सो अगर तुम्हें मालूम है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जब राइट टू इंफॉर्मेशन, तुमने कभी कोशिश की है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ने की? कोशिश करना छोड़ो, एक्ट भी मत करो. हो सकता है कभी ना कभी तुम्हें आते जाते एप्लीकेशन डालनी पड़े, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार. एक बार थोड़ा सा ख्याल करो एंड फटाफट आंसर देना. अगर मैं तुमसे ये बात पूछूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन, मैं देखो तुम्हें 30 सेकंड दूंगा, नहीं मैं तुम्हें 20 सेकंड दूंगा. आई जस्ट गिव यू 20 seconds टू गिव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. राइट टू इंफॉर्मेशन, इफ आई आस्क यू, comes from or stems from which article of the constitution? You will be very surprised to know that right to information के preamble में लिखा हुआ है, RTI Act के preamble में लिखा हुआ है that it stems from the freedom of speech and expression, which is very surprising. भाई सरप्राइजिंग तो है ही. मैं जो अभी अभी तुम लोगों के साथ कर रहा हूं, मैं जो वीडियो बना रहा हूं कैमरा के सामने खड़े होके, मैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही कर रहा हूं. आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसलिए मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं. दिस इज माई फंडामेंटल राइट. लेकिन भाई विचार तो तब व्यक्त करोगे ना जब तुम्हें कुछ पता होगा. स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए इंफॉर्मेशन होना बड़ा जरूरी है. इंफॉर्मेशन होगा तब जब मैं कोई सवाल पूछूंगा और मुझे जवाब मिलेगा. मुझे गवर्नमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं, चारों तरफ अंधकार है, तो फिर मुझे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी. और जब मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो मैं उसका करूंगा क्या? इंफॉर्मेशन के बिना मैं क्या स्पीच करूंगा और मैं क्या एक्सप्रेशन करूंगा? सो माइट एज वेल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंफॉर्मेशन इज द रूट ऑन द बेसिस ऑफ विच स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैपेंस. आई होप तुम समझ पा रहे हो. तो अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो पहले तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होगी तभी तो तुम एक्सप्रेशन करोगे. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज हाउ यू स्ट्रेच द लॉजिक. हाउ डू यू स्ट्रेच द लॉजिक? हाउ डू यू इंटरकनेक्ट दिस? इट सेज एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A. भाई मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट को क्या, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, गवर्नमेंट के पीछे क्यों पड़ गए? गवर्नमेंट थोड़ा ना करी, सब पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग होती है.
लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछना चाहता हूं कि तूने एक्स पॉलिटिकल पार्टी ने तुमने वाई से पैसे क्यों लिए? और भाई मैं उनसे पूछूंगा कैसे? हाउ विल आई आस्क देम? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पीछे इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। मैं पॉलिटिकल पार्टी को पूछने लायक ही नहीं रहा। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अंडर आरटीआई, लेकिन मैं फिर भी मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं। आई शुड नो कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी किससे फंडिंग ले रही है। फॉर सम टाइम आरटीआई छोड़ो, मैं ये तो जानना चाहता हूं मेरा पॉलिटिकल पार्टी किससे फंडिंग ले रही है, कितनी फंडिंग ले रही है, उसको पता तो करो। वर्क, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्लीज अंडरस्टैंड, जो पॉलिटिकल पार्टी में फंडिंग करता है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी में प्लेस होल्डर हो जाता है, उसका एक रोल हो जाता है। और फिर एक वर्ड आ जाता है, एक हाथ लो एक हाथ दो, क्विड प्रो क्यो, इसको बोलते हैं QUID, क्विड PRO क्यो QUO, एक हाथ लो एक हाथ दो। ये मुमकिन है, पॉसिबल है, इनफैक्ट प्लॉजिबल है। अगर मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं एज अ पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी मुझसे पैसे ले रही है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि देयर कुड बी एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू, कि भाई तू पैसा दे रहा है तो भाई तेरी भी हम सुनेंगे। अगर ऐसी कोई बात हो रही है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट कम्स अंडर स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। मैं तभी पूछ पाऊंगा जब मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट इज टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इज द ब्रेथ, इट इज द वेरी ब्रेथ ऑफ डेमोक्रेसी। कैश डोनेशन आप 2,000 रुपए तक दे सकते हो, वो भी फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 से हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अनुसार चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स एनी अमाउंट दे सकते हो। चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर टू इलेक्टोरल ट्रस्ट एनी अमाउंट दे सकते हो, और इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ आप एनी ट्रस्ट दे सकते हो, एनी अमाउंट दे सकते हो। 2017 के फाइनेंशियल एक्ट में ये डाल दिया गया था, और बहुत ही जबरदस्त इसके बारे में इसके अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया। डोनेशंस वर ह्यूज। प्लीज रिमेंबर, जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी, ऐसा सोचा गया था कि अनक्लीन मनी नहीं आएगा। ओके, देयर वुड बी नो फर्दर अनक्लीन मनी, क्योंकि कैश जो होता है, जो इस तरह से पहले दिया जाता था डोनेशन, उसके ऊपर तो कोई नाम पता होता नहीं है, वो बेनामी होता है, ना खाता ना बही, जो तुमने कहा वही सही। सो देयर वॉज large scale so-called money laundering happening, so-called wrong kind of funding happening, and that is why 2017 या 2018 की न्यूज है, so it was done to curb corrupt illegal donation for quid pro quo। कि जी ये जो पैसे दिए जाते हैं ना, देखो प्लीज अंडरस्टैंड, तुम लोग को ऐसा लगेगा कि मैं अपने पॉलिटिकल विचार बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं। ओके, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, राइट। मैं ये भी नहीं चाहता कि यू एक्सप्रेस योर पॉलिटिकल ओपिनियंस और पॉलिटिकल बायसेस। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूं। लेकिन आई वुड से दैट द गवर्नमेंट, एटलीस्ट व्हेन इट स्टार्टेड एंड व्हाट इट सेड ऑन पेपर वाज वेरी गुड, एटलीस्ट इट साउंडेड वेरी गुड। इट इट चेक्ड ऑल द बॉक्सेस। यस, हमें मालूम था इससे पहले करप्शन हो रहा है, हमें मालूम था पहले कैश डोनेशन हो रहा है, हमें मालूम था इलीगल फंडिंग हो रही है, हमें मालूम था ब्लैक मनी का लॉन्ड्रिंग हो रही है। ऑन दैट ग्राउंड आई थिंक दिस एक्चुअली चेक्स ऑल बॉक्सेस, करेक्ट। दिस इज मेकिंग द करेक्ट नॉइस, ऑल द राइट नॉइसेस। इट सेज कि हम लोग कर्व करेंगे, वो पैसा नहीं जाएगा, 2,000 रुपए से तो कुछ होता नहीं है, उसके बियॉन्ड जो भी पैसा दोगे वो करप्ट और इलीगल डोनेशन को स्टॉप कर देगा, क्विड प्रो क्यो को बंद कर देगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू ही वहां पे हुई थी जो रोकने वाला था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज को बोल दिया कि जस्ट बिकॉज आपको लगता है या यू कम आउट ऑन पेपर कि इससे क्विड प्रो क्यो या एक हाथ लो एक हाथ दो बंद होता है, हमें नहीं लगता। हमें लगता है उल्टा एनोनिमिटी से भी, यानी कि बेनामी होने के बाद भी वो क्विड प्रो क्यो बड़े आराम से हो जाएगा। सो देयर वर मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे ना, भर भर के डाला हुआ है। सिटीजन ऑफ इंडिया भी ले सकता है, कंपनीज भी ले सकती है, और केवाईसी भी देने हैं, एप्लीकेबिलिटी भी देनी है। 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ के बॉन्ड्स है, 15 दिन में जाना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेना है, नॉन रिफंडेबल है, सब कुछ था।
सारा का सारा प्रॉब्लम है इस लाइन पे। ऐसे लो लेंस, ओके, टेक अ लेंस एंड लुक एट दिस। यहां लिखा है बायर इंफॉर्मेशन विल बी कॉन्फिडेंशियल। लो सर, ये वहां पर जाके अटकी गाड़ी जहां पर बिल्कुल नहीं उम्मीद थी। बायर इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट एज कॉन्फिडेंशियल। उसी बात पे ये सारी कहानी होगी, और ये आज की स्टोरी नहीं है माय फ्रेंड्स। वी बीन डिस्कसिंग दिस at least in newspapers and editorials and in the so-called close circles of academicians over a long period of time. There have been several arguments on this before this matter ended up in the Supreme Court and today's judgment came up. The Communist Party of India ने पहले भी ये बात बोल दी थी कि no, we don't agree to this. Election Commission of India had also expressed their opinion. The Election Commission of India was somewhere in the middle. They said we are not totally opposed to this, but we are also not totally for it. There were many political parties which would say, यार ये बड़ी अजीब बात है, किसने पैसे लिए, किसने दिए, we are not going to agree to this part. Finally, last October and November, last year's October and November, the end of October and the first week of November में arguments हुआ in the Supreme Court. Finally, the judgment came. And the judgment came, as I said, that on the basis of this word, anonymity. Anonymity भारी पड़ गया, right? And everything went down the drain. अगर तुम थोड़ा सा पुराना डेटा है, बट इफ यू लुक एट दिस, यू नो, बड़ी अजीब सी बात है। एक बॉन्ड 1,000 रुपए का ले सकते हो, एक बॉन्ड 10,000 का ले सकते हो, एक 1 लाख का ले सकते हो, एक 10 लाख का ले सकते हो, एक 1 करोड़ का ले सकते हो। अगर तुम सिंपल नॉर्मल साधारण आदमी की तरह सोचोगे तो तुमको सच में ऐसा लग रहेगा कि अगर यार मैं पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करूं तो 1,000 रुपए का बॉन्ड दे दूंगा, 10,000 रुपए का बॉन्ड दे दूंगा। तो उम्मीद ऐसे करोगे, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, भोलेपन वाला कैलकुलेशन ये होगा कि यू वुड इमेजिन और रादर यू वुड एटलीस्ट टेक अ गेस दैट मेजॉरिटी बॉन्ड्स कौन से बिके होंगे। सो थिंक अबाउट इट, मेजॉरिटी बॉन्ड्स अगर तुम थोड़ा सोचोगे तो तुम्हें लगेगा 1,000 रुपए के बॉन्ड ज्यादा बिके होंगे। भाई बिल्कुल उल्टा है पिरामिड, ऐसा पिरामिड इज उल्टा। इफ यू लुक एट द डेटा, मेजॉरिटी बॉन्ड्स 1 करोड़ के बॉन्ड्स होते हैं। सो 5,400 बॉन्ड्स 1 करोड़ के बिके, 4,723 10 लाख के, 1,543 1 लाख का है, और 60 बॉन्ड 60 बॉन्ड्स 10,000 के एंड 47 बॉन्ड्स 1,000 रुपए के। मतलब पूरा पिरामिड उल्टा है। झटका लग गया होगा तुमको। झटका इसलिए लग गया होगा बिकॉज यू नेवर इमेजिन that this is also a possibility, but it also actually shows or rather consolidates the fact, something that we were all discussing in the past, that zyadatar funding is corporate funding. Correct. So majority funding is corporate funding. That is why. And if you look at just glance at the image down here, most of the bonds, the bigger size bonds and the bigger amounts were getting sold in big cities. Obviously, corporates. So the entire thing is the pyramid is opposite. It is an inverted pyramid. Majority bonds are here. What does this show? So I think it says. So ये होता है electoral bond. So if you look at the electoral bond, I'll quickly go through the electoral bond. State Bank of India इसको issue करता है, right? Tranches में निकलता है, groups में निकलता है. Usually 3-3 महीने के बाद निकलता है. जनवरी, अप्रैल निकलता था. था. Please understand. Correct my grammar. All right. था गया ये. It's gone. वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता था, इट यूज्ड टू बी गिवन टू दोज पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच वर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ आरओपी एक्ट 1951 विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अलोंग साइड उसको 1% कम से कम वोट्स मिला होना चाहिए। अलोंग साइड विद दैट उसको वो ऐसे कैश नहीं कर सकते, यू जस्ट कैन नॉट कैश इट। देयर वर ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट्स, डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट्स में कैश करता। विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस, 15 दिन में उनको कैश करना है। 15 दिन, अरे यार तुम रोक नहीं रहे हो। 15 दिन में कैश करना नहीं है, करना होता था। इट्स गॉन, राइट? सो एंड इफ यू वुड नॉट हैव डन इट इन कैश इन 15 days, ऑल दैट मनी वुड हैव लैंडेड अप इनटू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ये प्रॉमिसरी नोट की तरह था। इट वाज अ प्रॉमिसरी नोट, ओके। सो दिस वाज अ प्रॉमिसरी नोट। इशू का डेट होता था, वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने सब रेड कर दिया। मैंने पता नहीं रहूं, ये मेरा नाम नहीं। अब कैसा पता चलेगा मैंने किया? यू डोंट नो दिस, यस। सो यू डोंट नो, हो सकता है मेरा ही नाम हो, ओके, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, सिर्फ वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पता चलेगा। दिस एनोनिमिटी भारी पड़ गई एंड दिस इज द एंटायर पार्ट। सो इफ यू रीड दिस, इट सेज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइड गैजेट नोटिफिकेशन नंबर 22 2 January 2018। दिस इज गॉन, अलविदा, याद रखना, ओके, इट इज गॉन। सो वी हैव सीन मेनी, द न्यूज़पेपर्स
are peppered with this kind of discussion. There were both pros and cons. There was noises from all sides. Some people supported it, some people did not. Finally, it ended up. So this is coming from this article, Article 19, Subclause 1. Read this: protection of certain rights regarding freedom of speech and expression. All citizens have the right to freedom of speech and expression. And these are the reasonable grounds of restriction. मैंने तुम्हें बता दिया कि ये कैसे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए इसके साथ कनेक्टेड है. आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए इसलिए कनेक्टेड है माय फ्रेंड्स बिकॉज बिना इंफॉर्मेशन के, बिना आपको पता चले कि क्या है, उसका नॉलेज क्या है, क्या नाम है, किसने फंडिंग की है, you cannot ask a single question because you do not have any information. So article 19(1)(a) talks about speech and expression. मैंने तुम्हें बोला था right to express one's views, opinions, beliefs by words, writing, printing, painting, lithography and any other means. So तुम्हें actually पता हो जाना चाहिए कि what is the Supreme Court, what has the Supreme Court taken a call upon, and this is the summarization. I'll leave you with this. 2 मिनट इसी को देखते रहो. You will actually enjoy this. Watch this. Look at the screen and I'll read it out for you. At a primary level, political contributions give a seat at the table to the contributors. That is, it enhances the access to legislators. This access also translates to influence over policy making. There is also a legitimate possibility that financial contributions to a political party would lead to a quid pro quo arrangement because of the close nexus between money and politics. The electoral bond scheme and the impugned provisions, to the extent that they infringe upon the right to information of the voter by anonymizing the contributions to electoral bonds, are violative of Article 19, Subclause 1, Subclause A. This is a great summarization and this is how we close the entire discussion. इसी को मैंने तुम्हें simple words में समझाया. And this is how the Supreme Court has so beautifully put and summed up in their judgment. This is a screenshot of today's judgment and violative of Article 19, Subclause 1, Subclause A. I am sure you are a wise gang of students and who are watching, and I'm sure आपके खुद के भी ओपिनियन होंगे. Alright, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने ओपिनियन जरूर बोलो. YouTube पर वीडियो देखना और मेरे थॉट सुनना एक बात होती है, बट इट विल डू यू अ वर्ल्ड ऑफ गुड अगर तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम क्या सोचते हो. व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक द गवर्नमेंट वाज करेक्ट? नंबर 1, पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक द गवर्नमेंट वाज करेक्ट इन लॉन्चिंग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? नंबर 1. सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड हैव प्रेस सो हार्ड ऑन anonymity? This is question number 2. Question number 3 is that now that the electoral bond scheme is relegated to history, now what is a better way? What is the way forward? What will you do now? Will you start getting cash donations or would you have any other way? In fact, one of these things was the Honorable Supreme Court also commented on this, that the government ने बोला था कि ये हम लोगों ने इसीलिए किया था because we wanted to curb corrupt kind of or illegal funding. Supreme Court said there might be different ways. This is not following in within what is called as the doctrine of enough representation. It is not reasonable enough, right? There are better methods to do it. अब क्या better methods? What do you suggest as citizens of India? What do you suggest as law students? So make sure that you add to your thought process. थोड़ा सोचो, concerned citizen की तरह सोचो. Put down in comments. I'll be waiting for you. Okay, जो लिखना लिखो, but keep it civil, please. All right, and ensure that you take a complete full participation in such kind of videos. मैं ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए लेकर आता रहता हूँ. मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर का वो जो ज्ञान है, राइट, वो बढ़े और वो पैसिव कभी नहीं बढ़ता, हमेशा एक्टिव बढ़ता है. सो दोस अमंग्स यू हु वांट टू जॉइन अस ऑन अकेडमी, प्लीज जॉइन अस. देयर आर बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज. फ्लैट 50% ऑफ है, 6 months फ्री एक्सटेंशन चल रहा है. दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म. प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल टिल इंटरव्यू. अनअकैडमी आपका साथ देगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड SIDLIVE SIDLIVE. ऑल्सो अगर आप 18 फरवरी को दिल्ली में हो तो वील बी वेरी हैप्पी टू इंटरैक्ट विद यू इन पर्सन. प्यारे लाल भवन, गांधी मेमोरियल हॉल, 18 फरवरी 11 सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक. दीज आर टीचिंग सेशन, दीज आर बूट कैंप सेशन. सो इट विल डू यू अ वर्ल्ड ऑफ गुड. इफ यू वांट टू जॉइन अस, वील बी वेरी वेरी हैप्पी टू इंटरैक्ट एंड शेयर आवर थॉट्स विद यू. अनअकैडमी एश्योर अभ्यर्थी से अधिकारी तक ऑन क्रैकिंग प्रीलिम्स.
fully paid online QEP for mains आपको अनअकैडमी देगा. This is something which you should never miss. I hope you have enjoyed this. और अगर आपने एंजॉय किया, मैं भी इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का. Until next time, in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless you.